I'm in Bikaner in Rajasthan. Bikaner is among the 12 Lok Sabha constituency in the state that will go to polls in the first phase on 19th April. Rajasthan has 25 Lok Sabha constituencies where polling will be held in two phases. The Bikaner Lok Sabha constituency seen BJP candidates win since 2004. Since independence, Bikaner has witnessed 17 Lok Sabha elections, of which Congress has won 6 times, BJP 5 times, and independent candidates 4 times. With a population of 2.37 million, the constituency is 33.86% urban and 66.14% rural. Over 1.6 million people qualify to vote. Scheduled caste and scheduled tribes make up 20.88% and 0.33% of the population respectively. 78.67% of the population are Hindus, while 17.27% are Muslim. 62.5% people turned up to vote in 2019. The sitting MP here is BJP's Arjun Ram Meghwal, who is currently serving as the Union Minister of Law and Justice since 2023. He is also the Minister of State for Parliamentary Affairs since 2017. Arjun Ram Meghwal has been winning the Bikaner Lok Sabha constituency for the last 3 consecutive terms. In 2019, with just over 6,57,000 votes, he had 58.92% of the vote share. Congress was number 2 with 35.80% of the votes. Meghwal is now up against Congress, Govind Ram Meghwal. Arjun Ram Meghwal was born to Lakhu Ram Meghwal and Hira Devi in small village of Kishmi Desar in Bikaner. He is a Master of Arts and Political Sciences, LLB and MBA from Dungar College in Bikaner and University of Philippines. Having won the Bikaner seat in 2009, Meghwal was made Chief Whip of BJP in Lok Sabha and Chairman of House Committee. In 2014, he did not disappoint and once again won the Bikaner seat. He was made the Minister of State for Parliamentary Affairs and Public Enterprises in 2019. After having won the Bikaner Lok Sabha seat for the 3rd time, he replaced Kiran Rijiju as the Minister of Law and Justice in May 2023. The origins of Bikaner can be traced back to 1488, when a Rathore prince, Rao Bikaji, founded the kingdom. The city boasts some of the world's best camel rides and is aptly nicknamed Camel Country. Another unique aspect of Bikaner is the sand dunes scattered throughout. The city displays its ancient opulence through palaces and forts built of sandstone that have withstood the passage of time. The Junagarh Fort, the Lalgarh Palace and Museum, the Rampura Haveli, the Lakshmi Niwas Palace and Deshnok Karni Mata Temple are amongst the myriad architectural and historic marvels of Bikaner. It's 9 a.m. and we sit down with the minister as he breaks bread. It is a long day ahead and he will need all his strength to carry on with the day's travails. He enjoys the traditional Rajasthani breakfast, dal churi, which his wife has served up for him. अगर हम अर्जुन राम मेघवाल की बात करते हैं तो सिंप्लिसिटी की बात आ जाती है, बिल्कुल जुड़े हुए, क्योंकि आप आईएएस अफसर रहे, उसके बाद लॉ मिनिस्टर अब है, तो ये जो आपका जड़ों से जुड़ाव है, इसे कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि अगर हम सर पे पगड़ी की बात करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। सर देखिए, ये हमारी संस्कृति में किसको रिप्रेजेंट करता हूँ? जनता को। अगर जनता के लोग पगड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, तो और मैं नहीं पहनूँ तो मैं फिर जनता को कैसे रिप्रेजेंट करूं? मैं तो जनता का आदमी हूं ना। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं भारत में रहता हूं तो ये ड्रेस, मैं तो विदेश जाता हूं तो इसी ड्रेस में रहता हूं। वो कई बार तो देखते हैं, यार ये कौन आ गए, फिर वो यार ये कौन आदमी है, कोई वो समझते हैं कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ होगा, तो जब बोलते हैं तो पता चलता है यार तो पढ़ा लिखा है। तो ये तो काम भी करती है ना हमारे। फिर वो साइट पे जाते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है, तब पता चल रहा है ये सब सिर्फ भी रहा हुआ है।
वित्त राज्य मंत्री भी रहा हुआ, कॉर्पोरेट अफेयर्स में, अभी कानून मंत्री है। तो सब अपना ये जो पगड़ी है और ये जो मेरी ड्रेस है, ये बहुत से लोगों को मजबूर करती है मेरी साइट देखने के लिए। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जब आप पार्लियामेंट में साइकिल से जाते हैं, लोग एसी गाड़ियों से जाते हैं, लेकिन आप ऐसे सांसद बनते हैं। सिर के लिए ठीक रहती है, सिर के लिए ठीक रहती है। पहली पगड़ी बांधते थे तो इतना आदमी बीमार नहीं पड़ते थे, अटक नहीं आता था। तो ये पगड़ी अटैक नहीं, अटैक हार्ट अटैक, हार्ट अटैक नहीं आता था। अटैक। ये पगड़ी सिर को मजबूत करती है, नाड़ियों को मजबूत करती है। हर चीज का साइंटिफिक रीजन है, प्रेम के साथ। ईंट सीधे नहीं पड़ती है ना, इसलिए अटैक। साइंटिफिक रीजन है। अटैक नहीं। ताली तो बजाओ या नहीं करो, पाना देर खतर। साथ ही साथ क्या डॉक्टर बोले क्या बोले। सर, क्योंकि हम सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, हम सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, तो आप वो पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड तो मिला ही था, लेकिन साथ ही साथ साइकिल वाला क्वेश्चन में उसी पे आ रही हूँ मैं कि साइकिल से आप जाते हैं, बाकी लोग एसी गाड़ियों से आते हैं, आप साइकिल से जाते हैं। देखिए, कार्बन एमिशन को हमें कम करना है, तो कैसे प्रेरणा देंगे नई जनरेशन को? तो मैंने साइकिल को चूज किया कि साइकिल फिटनेस के लिए भी ठीक है और नई जनरेशन को प्रेरणा देती है कि क्या हम जो हमारी जनरेशन आगे आ रही है उसको धुआं रहित वातावरण नहीं देना चाहते? क्या हम जनरेशन को ऐसा चाहते हैं भाई ये धुआं धुआं धुआं, और दूसरे कहे कि भाई भारत में इतना धुआं है? तो कुछ नागरिक अपना कार्बन एमिशन को कम करने के लिए प्रेरणा दें, क्योंकि बहुत से देश कहते हैं कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन इंक्रीजिंग कार्बन एमिशन। ये नहीं होना चाहिए ना। हम तो भारत के वो लोग हैं पेड़ को भी पूछते हैं, हम तो पेड़ों में भी देव हमारे कहते हैं जीव है। जेसी बसु ने बाद में कहा, हमारी संस्कृति ने पहले कहा कि पेड़ को मत काटो भाई, इनको भी पीड़ा होती है। तो जब हम पीपल को काटते ही नहीं हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, फिर दूसरे दोष क्यों कहें कि हम कार्बन एमिशन को बढ़ाने में हम मदद करते हैं? इसलिए हमने ये सोचा कि साइकिल से क्या हम पार्लियामेंट जा सकते हैं। तो मैं रेगुलर गया, करीब करीब 2 साल तक रेगुलर। मंत्री बनने के बाद फिर सिक्योरिटी के इशू आ जाते हैं, तो कभी पर्यावरण दिवस पे जाता हूँ, कभी यहाँ होता तो जाता हूँ, कभी गांव में भी मैं कहीं नाइट स्टे करता हूँ, तो सुबह सुबह साइकिल पे जनता के साथ। एक दिन तो अपने साइकिल उसको बीएसएफ के साथ 18 किलोमीटर चलाई थी। साइकिल इसलिए साइकिल चलाते थे ना, साइकिल चलाते थे तो ये शरीर सारा मजबूत रहता था, कोई गोडा दुखता को नहीं, या सारी साइकिल एक्सरसाइज हो जाती। अब क्या योगा करो वो करो, ये साइकिल से पहले पुराने जमाने में साइकिल चलाते थे तो आदमी गोडा और कमर कभी नहीं दुखती थी, कभी नहीं दुखती। वह योगा टाइप हो जाती, सारी शरीर कसरत। औरतें घटी चलाती थी, औरतें घटा क्यों चलाती थी? क्योंकि औरतें शरीर मजबूत हो जाता है। अब औरतें अभी जो पुराने जमाने वाली औरतें काम करती है तो बहरहाल कर लेगी क्या? नहीं करेगी। क्यों? कि पहली वो चक्की चलाती थी, 2 किलोमीटर से पानी लाती थी, तो उसका शरीर मजबूत होता था। अब डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, ऑपरेशन से होती है। क्यों होती है? वो भी ज्ञान है था ना कहीं। क्यों होती है? क्यों कि वो लेडीज चक्की चलाती थी, वो पानी 2 किलोमीटर से दूर लाती थी, तो बच्चों भी तंदुरुस्त रहता, सब शरीर सही रहता था। मासा के पास सारे जवाब है, आपकी पगड़ी से लेके साइकिल तक के सारे जवाब है। अब ये राज आज हम लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ से आ रहा है। कोई गोली नहीं थी और कोई फल फ्रूट नहीं थे। क्यों? औरत मोटा धान खाती थी। मोटिवेशन लग रही है मुझे आपके पीछे, साइकिल चलाना है, पगड़ी, सब कुछ इनका ही है। अच्छा सर, अब खाने की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सुबह सुबह अगर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है, लोकसभा इलेक्शन सर पर है, सबसे मिलना होता है, क्या कुछ ऐसा एकदम न्यूट्रिशियस खाते हैं आप कि मतलब अगर राजस्थानी की बात करें तो वो अलग और न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारी जनता खाती है वही खाता हूँ मैं, कोई अलग से हमारा विषय नहीं है। मैंने जीवन में उतारा है कि जो जनता खाती है ना वही खाता हूँ मैं। जैसे कि क्या सर? कुछ भी जो जनता बनाती है वही। मुझे कई बार अंदर बैठा देते हैं, साहब बेटा एसी चल है, मैंने एसी में कौन नहीं रहना, मैंने जनता के बीच में रहना यार, बेटा माचा माती बैठ जिमा दो, मैंने जनता देखे मैंने। अब जैसे मैं खा रहा हूँ ना, तो प्रधानमंत्री ने कहा आपको अकेले नहीं खाते हो तो थाली में जूठन नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सिस्टम प्रधानमंत्री ने सिखाया हमें कि आप अकेले नहीं खाते हो भाई, और आप खा के चले गए, झूठा छोड़ गया शादी में और मोदी और मंत्री देखो झूठो छोड़ दियो, झूठ तो बोलना नहीं चाहिए। नहीं वो झूठन तो मोदी जी कह रहे हैं भाई मैं तो बात दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे को क्यों कहते हैं लोग
क्योंकि आप मेरे मंत्री हो, इसलिए आपको अब जैसे मैं पूरा हिसाब करूंगा, ठीक है ना, ये भी एक सिस्टम है जूठन का। क्या है सर? इसके पीछे अन्न को है नहीं, ये अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ ये है, अन्न को अपमान नहीं करना चाहिए। झूठे करते हैं नहीं, झूठे करते तो अन्न भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। सारी साफ करके फिर खाना चाहिए। झूठा छोड़ते तो इनको क्या कहते हो, कितने पढ़े पता है ना आपको? तो पढ़े लिखे होने दो अनुभव, गुणवान होना, संस्कारवान होना जरूरी है। अब ये स्कूल के उड़ा अलग कोई 4-5 महीना और पद का खेत बचा लो। हाँ, 4-5 महीना स्कूल के बाद में गुण जो लिए ना संस्कार से, वो कितने महत्वपूर्ण है। अन्न का अपमान नहीं हो, अब भाई साहब दर्शन है वो तो, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए, ये दर्शन है जीवन का। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। सर अब साथ ही साथ क्योंकि आप ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, थोड़ी सी अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात कर लेते हैं, बीकानेर के अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर हम बीकानेर को देखते हैं? क्योंकि 2009 से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और आपका एकदम कंट्रोल जिसे कहते हैं वो है, जीतते आ रहे हैं आप। यहाँ ये कुर्सी बताओ, कुर्सी वाली बात बताओ। देखो ये कुर्सी जनता की है। हाँ, यहाँ कुर्सी जनता की है, हमारी नहीं है। जनता बैठाएगी तो बैठेंगे। हमारी दिल्ली नहीं है, दिल्ली जनता की है। हाँ, कुर्सी जनता की है। दिल्ली भी हमारी नहीं है, जनता भेजेगी तो जाएंगे। सर प्राथमिकताएं क्या है? क्या कुछ बीकानेर में कुछ ऐसी चीजें जो आप इस बार जीतोगे तो प्राथमिकताएं ये रहेंगी? देखिए, बड़ा विषय है वैसे, लेकिन सबसे बड़ा विषय रहेगा सिरेमिक हब का, क्योंकि हमारे आसपास मिनरल बहुत है और वो अभी मोर भी जाता है। तो हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया बने, तो गजनेर में अब वो बन गया और गैस पाइपलाइन जैसे ही आएगी उसके बाद ये सिरेमिक हब बन जाएगा और हमारा रॉ मटेरियल मोर भी नहीं जाएगा। एक तो बड़ा काम है। दूसरा, पोटास यहाँ निकला है लूणकरणसर और डूंगरगढ़ के क्षेत्र में, तो फर्टिलाइजर का भी हब बनेगा। ये मुझे लगता है 2 बड़े काम हम आने वाले समय में करना चाहते हैं। सर साथ ही साथ आप कानून मंत्री हैं, तो सीए भी लागू हो गया है, अब कैसे आप देखते हैं इसको? क्योंकि अगर हम सीए की बात करते हैं तो विपक्ष भी यहाँ पे काफ़ी अगेंस्ट में रहा था, दिल्ली राइट्स भी हुए थे, लेकिन अब सीए लागू हो चुका है। आप बतौर कानून मंत्री इसको कैसे देखेंगे? देखिए, 2-3 चीज़ें आप समझो अपने आप। एक तो ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1 जुलाई से इस देश में जो भारतीय न्याय संहिता है वो लागू हो रही है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो लागू हो रही है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहा है। ये बड़ा परिवर्तन है, ये छोटा परिवर्तन नहीं है। अंग्रेज़ों को हमें दंड देना था, इसलिए उन्होंने भारतीय दंड संहिता बनाई। नरेंद्र मोदी जी को न्याय करना है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता बनाई। बहुत बड़ा फर्क है आपको। अब आप देखिए ना, आईपीसी में धाराएं 302, मतलब आदमी मर जाए वो तो 302 में, और आप किसी कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन करो 5 और 5 से मिल करके, तो वो 145, 141, 142, 143, उनको प्रायोरिटी वो थी ना। 302 उनकी मर्डर उनके लिए प्रायोरिटी नहीं था। 376 पीछे डाला, क्यों? हम हमारी प्रायोरिटी में लाए हैं, महिलाओं का सम्मान पहले लाए हैं, धाराएं चेंज की हमने। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जी, और इतना बदलाव है कि नरेंद्र मोदी जी को मुझे लगता है कि मोदी जी तो गुरु जी है, और तो लाना चला देश मोदी जी संभाल रहे हैं, देश मोदी जी संभाल रहे हैं, हम तो लारे चले हैं। गुरु जी मोदी जी है, गुरु जी बस मेरे प्रेरणा आपा लेवा। धोती कुर्ता और सर पर पगड़ी रखने वाले एक सांसद जो बीकानेर से हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल की, जो कि केंद्र में लॉ मिनिस्टर है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से बीकानेर से प्रत्याशी बनाया है, यानी बीकानेर की सीट से वो 2009 से लगातार जीतते आए हैं और अब अर्जुन राम मेघवाल पर वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है और उनको यहाँ पर वापस से कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट खड़ा किया है। और आज हम बीकानेर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जनसभा को, यहाँ पर एक छोटी सी जनसभा ये कर रहे हैं जहाँ पे लोगों को
ये संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर दिखाना चाहिए, किस तरीके से जो वोट है या मत है उनका वो भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। और यहाँ पर जिस भारी तादाद में लोग आए हैं, आप देख सकते हैं कि अर्जुन राम मेघवाल को आशीर्वाद देने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए बीकानेर की जो जनता है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल को ना सिर्फ सुनने आई है बल्कि समझने भी आई है। हालांकि अर्जुन राम मेघवाल संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह वो उभर के आए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के विकास के बारे में सोच रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे की बात करते हैं, तो क्या इस बार फिर से, क्योंकि 2009 से अगर हम बात करें और देखें तो अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पर प्रत्याशी हैं, जीतते आए हैं और बीकानेर की सीट पर एक जो दबदबा है वो भारतीय जनता पार्टी का नजर आया है। लेकिन अब 2024 के चुनाव में जब 400 पार का टारगेट है तो क्या इस बार अर्जुन राम मेघवाल को वापस से बीकानेर की जनता जिताती है और ये सीधा जो वोट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। We get on the road with the minister as he canvasses the streets of Bikaner to garner people's support. बीकानेर की जब हम बात करते हैं सर, तो मेरा सबसे पहला सवाल यह रहेगा कि गोविंद मेघवाल इस बार पूर्व कैबिनेट मंत्री वो रहे थे, तो क्या कहीं लग रहा है आपको टफ कंपटीशन है इस बार? देखिए, मैं पूरे करीब ग्रामीण क्षेत्रों में जाके आया हूँ। शहरी क्षेत्रों में भी मेरा भ्रमण हो चुका है, कुछ मैं लगातार भ्रमण कर भी रहा हूँ, अलग अलग ग्रुपों से मिल भी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त लहर चल रही है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ धरातल पे उतरी है, उनका असर दिख रहा है। मैं जैसे एक रोड की बात करूं, भारतमाला रोड जो अमृतसर से जामनगर गई 80,000 करोड़ की रोड है। कभी कल्पना ही नहीं की होगी इतनी बड़ी रोड बनती है। जो राजस्थान में हमारे बीकानेर से गुजरी वो 200 किलोमीटर है। तो लोग कहते हैं कि ऐसी रोड बनी है कि इसके चारों तरफ फैक्ट्रियां लग जाएगी, आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, हमारा माल सीधा कांडला पहुंच जाएगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण जनता कह रही है तो हमें तो ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा। तो सर मतलब एंटी इनकम्बेंसी जो कि 10 साल में होनी चाहिए वो दिख नहीं पा रही है, विकसित कतई नहीं। और अब तो मोदी जी ने एक संकल्प लिया है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। उसके लिए जो अर्थतंत्र में उन्होंने सुधार किया है, और जब अर्थतंत्र में सुधार होता है तो ग्राम पंचायतों को पैसा ज़्यादा मिलता है, सड़कों में बजट ज़्यादा आता है, जो रेल विकास है उसमें बजट ज़्यादा आता है, आपके सरोवर हैं जैसे अमृत सरोवर है, तालाब ठीक हुए, तो लोगों को लगा, नहरों का सुदृढ़ीकरण हुआ, नहर मरम्मत हुई, तो लोगों को लगा कि इतने काम इस पीरियड में हुए हैं इन 10 सालों में। और मनमोहन सिंह जी भी अर्थशास्त्री थे, लेकिन वो अर्थतंत्र को ठीक ही नहीं कर पाए। और मोदी जी ने हमारी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया और इस कालखंड में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की वो बनाने जा रहे हैं। तो जब अर्थतंत्र ठीक होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर सेक्टर में पैसे आएंगे और डेवलपमेंट होगा। सर साथ ही साथ क्योंकि हनुमान बेनीवाल पिछली बार एनडीए में थे, अब वो एनडीए से बाहर चले गए हैं और सीकर सीट की अगर मैं कांग्रेस के उम्मीदवार है ना हम, वो हनुमान बेनीवाल तो लेकिन पहले एनडीए में थे, अब बाहर चले गए। सीकर से लेफ्ट को कांग्रेस पार्टी अलायंस कर रही है, तो आपको लग रहा है कहीं वर्चस्व दिख पा रहा है ऑपोजिशन का अगर जिस तरीके के अलायंस बैठ रहे हैं? तो काय का अलायंस है मेरे तो समझ में नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी सीकर की सीट ही छोड़ रही है, मतलब इनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। जहाँ 2-3 उम्मीदवार मेरे हिसाब से ज़्यादा, मैं तो प्रचार में बिजी हूँ, जयपुर वालों को टिकट दी, उन्होंने टिकट वापस कर दी। एक और राजसमंद या कहीं टिकट दी, वो कह रहा मेरे बिना पूछे टिकट दे दी। ये तो हालत हो रही है कांग्रेस की। इसलिए या तो वो गठबंधन कर रही है क्योंकि उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, 25 के 25 उम्मीदवार नहीं उनके पास। ये हालत है राजस्थान में कांग्रेस की आज। सर और राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो मूल रूप से जो मुद्दा निकल के सामने आता है वो एक तो पानी का आता है, दूसरा पेपर लीक का आता है। तो कोई रोड मैप क्या इसको लेके, और साथ ही साथ क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में भी आ गई है, तो लाल डायरी का उस समय की सरकार का इशू ज़रूर था, तो क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? 3 सवाल एक साथ पूछे। आपको कार्रवाई दिख रही है ना,
पेपर लीक वाले कितने आदमी पकड़े गए और कितना ही बड़ा क्यों न हो, आगे कार्रवाई जारी रहेगी। हमने संकल्प पत्र में डाला है, पेपर लीक करने वालों पे नकेल कसेंगे। शुरू हो गई। सर साथ ही साथ भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोलते आए हैं कि ना भ्रष्टाचार करेंगे ना होने देंगे, लेकिन ऑपोजिशन कह रही है पॉलिटिकल एजेंडा है। अब उनको भ्रष्टाचार भी पॉलिटिकल एजेंडा लगने लग गया। ये तो अगर ऐसा कह रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि वो नरेंद्र मोदी जी के दर्शन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। भ्रष्टाचार उनके ज़माने में जो था उन्होंने उसको देखा। जैसे उनके एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने भ्रष्टाचार को देखा और देख करके और एक पीड़ा प्रकट की देश के सामने कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ दिल्ली से, फील्ड में आते आते वो 15 रुपये ही रह जाते हैं, 85 रुपये बीच में खा जाते हैं। भ्रष्टाचार को देखा, डायग्नोसिस किया बीमारी का, लेकिन इलाज नहीं किया, वो सत्ता से बाहर हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का डायग्नोसिस किया, प्रॉब्लम कहाँ है, और उसके बाद डीबीटी जैसी स्कीम ला करके उसका इलाज भी किया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी पॉपुलर है। सर साथ ही साथ कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, क्योंकि आप कानून मंत्री हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यूसीसी का समर्थन नहीं दिया, उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ को हम ऊपर रखेंगे। साथ ही साथ सीएए पे चुप्पी साधे हुए हैं। और अगर हम, क्योंकि ज्ञान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते थे, तो उन्होंने कहा कि चाहे वो युवा हो महिला हो, हम सबको, एक तो रिजर्वेशन कैप के बारे में उन्होंने बात की है, यूथ को जॉब्स के बारे में बात की है, साथ ही साथ फ्री बीज की काफ़ी बात की है, और आखिर में ये कहा है कि ये न्याय पत्र है जो कि अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके खिलाफ। देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था तब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा हुई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय भी कहा था कि सही समय है, हम बहुत से ऐसे कानून हैं वो सभी वर्गों पे, सभी धर्मों पे लागू होते हैं। उन्होंने पूछा चला के कि क्या सीआरपीसी लागू नहीं है सब जगह, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, अभी कर लो। लेकिन उनका एजेंडा अलग था, वो मुस्लिम लीग के एजेंडे से प्रभावित थे। आज भी कांग्रेस वहीं जाकर के खड़ी हो गई है। आज भी कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है जो देश हित में नहीं है। कांग्रेस नॉर्थ और साउथ को बांटने के काम में कर रही है जो देश हित में नहीं है। हमारा सोच होना चाहिए कि हम भारत को एक रखें, भारत में जो एकता की भावना है उसको बलवती बनाएं। इस सोच से अलग सोच वो पैदा कर रहे हैं, देश के प्रति वो अन्याय कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग की याद दिलाता है, और देश कतई ऐसे घोषणा पत्रों में विश्वास नहीं करता है। समय बहुत आगे निकल चुका है, नई सोच उनमें है ही नहीं कांग्रेस में, क्योंकि उनको सत्ता में आना नहीं है, इसलिए उनको किसी भी तरह की घोषणा कर देते हैं। अभी में हम 2 कालखंड से देख रहे हैं, 2014 और 2019। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें नहीं जुटा पाई, सत्ता तो बहुत दूर है, तो कौन सा घोषणा पत्र लागू करेंगे वो। इस बार भी वही हाल है, नेता प्रतिपक्ष बनने लायक सीटें नहीं आएगी कांग्रेस के इस बार भी। सर अगर बीकानेर की हम बात करते हैं तो बीकानेर में ड्राई पोर्ट के बारे में काफ़ी बातें हुई हैं, और साथ ही साथ फेंसिंग के बारे में जो पाकिस्तान से जुड़ता बॉर्डर है उसको लेके इस बार कोई रोड मैप बना है, स्ट्रॉन्ग रोड मैप की किस तरीके से काम होगा उस पर। देखिए, हमारा जो अभी घोषणा पत्र जिसको हम संकल्प पत्र नाम दिया है, जिसके अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह जी, उनकी 2 मीटिंगें हुई हैं, मैं भी दोनों में गया हूँ। ये तारबंदी वाला विषय उसमें आया हुआ है, विश्लेषण चल रहा है। दूसरा आपने किसका विषय उठाया था? ड्राई पोर्ट का सर, वो जो कंटेनर। देखिए, ड्राई पोर्ट प्राइवेट सेक्टर में मुझे लगता है बहुत एडवांस स्टेज में मामला चल रहा है, और जैसे भी हो ड्राई पोर्ट वैसे तो चल रहा है लेकिन उस स्पीड से नहीं चल रहा। अब हमारा सोलर हब बन गया, कई नई फैक्ट्रियाँ आ गई, तो यहाँ डिमांड है ड्राई पोर्ट की, और वो डिमांड जल्दी हम पूरी करेंगे।
सर मेरा बस आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद के खिलाफ बोलते आए हैं कि परिवारवाद, दूसरी तरफ हमने देखा कि 2014 में कभी चाय वाले की ऊपर विपक्ष जो है वो प्रहार कर देती है, कभी चौकीदार चोर है पे, और इस बार आप लोगों ने मोदी का परिवार। तो ये किस तरीके की राजनीति विपक्ष करना चाह रहा है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं वो ऐसे आरोप लगा देते हैं। देखिए, मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये इतनी बड़ी बीमारियां हो गई है, उनका खात्मा किए बिना देश को तेज गति से विकास की ओर नहीं ले जा सकते। जैसे परिवारवाद का खात्मा करो कहते हैं तो विपक्ष के दल कहते हैं इनका तो परिवार ही नहीं है, ये क्या परिवार की बात कर रहे हैं, तो ये गाली हुई ना। तब सारे भारत ने कहा हम हैं मोदी जी का परिवार, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मेरा जो भारत है यही मेरा परिवार है। परिवारवाद को ख़त्म करने का मतलब आप एक पार्टी बनाओ, संसदीय बोर्ड में भी उनका बेटा, संसदीय बोर्ड में ज़्यादा लोग उनके परिवार के, टिकट भी उनके परिवार को देना, और कोई डिसीजन भी लेना तो उसके परिवार के लोग लेना। जब वो बूढ़े हो जाएं तो नई सत्ता प्राप्त करना उस पार्टी की, संगठन की, वो भी उसके परिवार में होना, वो परिवारवाद है। उस परिवारवाद के कारण ही ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो देश को खोखला कर रही है, क्योंकि वो परिवार हित है उनका, देश हित नहीं है। बीकानेर की जनता का आखिर क्या है मूड इस बार, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल जहां पर भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट है तो वहीं गोविंद मेघवाल को कांग्रेस ने रण में उतारा है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माहौल क्या है, क्या माहौल लग रहा है इस बार बीकानेर का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक तरफा माहौल है यहाँ बीकानेर में। क्यों, अगर ऑपोजिशन की हम बात करते हैं तो ऑपोजिशन दिखाई नहीं दे रहा है। ऑपोजिशन है ही नहीं सर, यहाँ है ही नहीं, ओनली फॉर भाजपा, अर्जुन मेघवाल। क्योंकि अगर हम बात करें ऑपोजिशन की भी, तो ऑपोजिशन से गोविंद मेघवाल है, तो वो भी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो क्या कंपटीशन टफ नहीं हो जाएगा। जैसे मोदी जी ने कहा कि 400 पार, तो फिर तो ऑपोजिशन होना मतलब ही नहीं है। 400 पार का मतलब ये हो गया कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अर्जुन राम जी 3 लाख या 4 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे, और 25 राजस्थान में हम सरकार को यहाँ भेजेंगे, 25 के 25 सांसद, जिससे हमारे नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत होंगे और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमारे अर्जुन राम जी चौथी बार बीकानेर से सांसद बनेंगे। इस बार आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे, मूल ऐसे कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव आता है तो हम देखते हैं कि लोकल मुद्दे जो होते हैं वो थोड़ा साइडलाइन हो जाते हैं, कौन से मुद्दों पर इस बार बीकानेर वोट करने वाला है। मैडम मैं तो करूंगा वक्फ एक्ट को हटाने के लिए सबसे पहले, कि जो ये नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं वो बंद हो हिंदुस्तान में, मेरा मेन ये है। और फिर मोदी जी ने कहा है 100 दिन के बाद मैं ऐसे काम करूंगा जो दुनिया देखती रह जाएगी, तो हम तो उसी इंतजार में। यकीन है, बिल्कुल 100% यकीन है मैडम। मोदी जी ने क्या कहा और क्या नहीं किया वो आप बताओ। जो कहा है उसको पूरा किया उन्होंने, उनका मैनिफेस्टो ऐसा है कि वो जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे वोट होना चाहिए। विकास के मुद्दों पे वोट होना चाहिए। हमारे बीकानेर की खुशकिस्मती है कि हमारे सांसद अर्जुन राम जी जो लॉ मिनिस्टर बने, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद अर्जुन राम जी को लॉ मिनिस्टर बनाया, ये हमारी खुशकिस्मती है। और इस बार अगर हमारे अर्जुन राम जी जीत के जाते हैं तो इससे अच्छा कैबिनेट मंत्रालय मिलेगा, और अगर गोविंद राम जी जीतते हैं तो क्या मिलेगा, वो तो विपक्ष में बैठे रहेंगे। इससे अच्छा कैबिनेट मंत्रालय मिलेगा, ये भी आश्वासन दे रहे हैं आप। नहीं, आश्वासन तो है ही। अगर अर्जुन राम जी जीतते हैं तो बीकानेर की खुशकिस्मती होगी, इतना बड़ा मंत्रालय मिलेगा, और मंत्रालय मिलेगा तो विकास होगा। ये तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अर्जुन राम मेघवाल जीतेंगे, तो कितने वोटों से इस बार अर्जुन राम मेघवाल को जिता रहे हैं? 5 लाख पार, अब की बार 5 लाख पार। तो आप कितने वोटों से? 5 लाख 5 लाख पार। 3 लाख से तो पिछली बार जीते थे। इस बार इतनी तगड़ी लहर है मोदी जी की, मोदी जी ने इतने बड़े अच्छे विकास के कार्य करवाए, तो इस 5 लाख के पार मोदी जी के सपोर्ट से अर्जुन राम जी जीतेंगे, और अर्जुन राम जी इस बार 5 लाख पार है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं बीकानेर की जनता की, तो अर्जुन राम मेघवाल को इस बार 5 लाख वोटों से जिताना है, यानी पिछली बार जो उनका वोट रेशियो था उससे बढ़कर इस बार जिताना है। विकास का मुद्दा जो है वो सबसे अहम मुद्दा रहेगा कि किस तरीके से विकसित भारत में राजस्थान और बीकानेर खास तौर पर कंट्रीब्यूट कर सकेगा। विद कैमरा पर्सन दिनेश, I am Mahima Kataria on the road stop on News X.